Okay, ji. Let's start. Okay, questions, comments or concerns? Anything? Mushba? Nothing? Okay, so let's start with the revision. In the subject of electric circuit analysis 2, we started the discussion with the AC signals, circuits operated on an AC signal. For our convenience, we use the phasor conversion instead of sinusoids. Okay. We encountered or we find the ease in the form of impedance, in the form of reduction of differential and integral equations into the linear equations. Okay. Then we try all the learned theorems, formulas that we have discussed in the ECA 1 or that we have gone through for the case of DC signals. Okay, KCL, KVL, so on, Thevenin, Norton. Okay, we applied all of them for the AC signals. Okay, after that, we genuinely started the subject. We see there are different things, there are different parameters that we should discuss when we are dealing with the AC signal, and the power was the first most thing. Okay, we discussed that how and what are the different terminologies commercially available when we are discussing the power of a circuit operating at an AC signal. Now, there are other important parameters that deals with the signal that deals with the circuit operated on AC signal. AC signal and DC signal. What is the basic or the first difference click in your mind when you talk about frequency? Okay, so in addition to the power, which is a commercial unit, everything is calculated, everything is dealt with respect to power. When you are discussing the AC, frequency is another important parameter that we should discuss, that how the circuit will behave when frequency will alter, when frequency will vary, what are the effects or what we could get benefit from that circuit, the same circuit. Okay, so this is our today's topic. In fact, we are going to discuss the chapter frequency response. Okay, so when we are going to discuss the frequency response of a circuit, okay, we mean that how the output and input will behave when we tune the frequency, when we change the frequency, when we play with the frequency. Okay, and on the second stage we will see that what are the benefits of that tuning, what are the roles of frequency in a circuit, in a circuit operated on an AC signal. Okay, so पहली स्टेज पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो आउटपुट और इनपुट है, अगर इनको हम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कर दें या ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और हम इनको फ्रीक्वेंसी के लिए स्विच करें तो क्या ओके, तो यहाँ पर पहली टर्म हमारे चैप्टर की रिस्पॉन्स की ट्रांसफर फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बताता है कि आउटपुट और इनपुट, ऑब्वियसली दोनों आउटपुट और इनपुट भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इनकी रेशो क्या, इनकी रेशो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कैसे बिहेव कर रही है. ओके, एक चीज हमने ये वाली बात की कि ये कॉम्प्लेक्स ओके, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होने की वजह से इसके दो जो है वो कंपोनेंट, ओके,
you like to name those parts? A complex number contains two parts. Very good. In phasor, what you used to say? In phasor, remember we are dealing with the phasor. Yes. Yes. What are the technical names of the angle and magnitude और angle? फेज फॉर अस एंगल, ठीक, यानी जो एक फेजर क्वांटिटी होती है उसके दो पार्ट्स है, मैग्नीट्यूड और एक उसका एंगल है। ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन को सर्किट की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करने के लिए, या इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि आपने उसका मैग्नीट्यूड पार्ट का बताना है कि फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, एक सर्किट था, उसकी आउटपुट और इनपुट का मैग्नीट्यूड क्या था जब आपने फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया। ओके, अभी हम आ रहे थे इस पर। इस तरह ही उसका फेज किस तरह से वेरी हो रहा था जब आपने फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया। यानी कि अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट, व्हिच इज एक्चुअली द कोर्स ऑफ इट मींस आई नीड टू गिव the observer two plots by transfer function, plot the transfer function by these questions. He mean to ask you frequency, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगी, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, या आपके सर्किट की आउटपुट और इनपुट कैसे बिहेव करेगा। ओके, कोई बात चल रही नहीं? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि एक तो मुझे अपने ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है, ठीक है, और दूसरा मुझे फिक्स के लिहाज से बात करना है। ओके, ठीक है, अभी हम सर्किट पे आते हैं और इन तमाम बातों को एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम तमहीद बांध रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन की टर्मिनोलॉजी है क्या, और आपको किस तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, क्या ट्रांसफर फंक्शन के नाम से आपके जहन में क्या स्केच बनना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने ट्रांसफर फंक्शन का नाम सुना, ठीक है, वो इस तरह भी हो सकता है कि जनाब आपके पास एक नेटवर्क है, एक आपके पास सर्किट है, लेट्स से अगर मैं इसको, ठीक है, ये एयर कंडीशनर हो सकता है। ओके, आपका सिंपल जो ब्रेड बोर्ड पर एक सर्किट बना होता है, अभी उसका टेक्निकल नाम मैं एक दो टॉपिक के बाद ले सकता हूँ। ठीक है, और इसको आपने कुछ इनपुट दी जिसकी वजह से कुछ आउटपुट आई। आज के लेक्चर से पहले ये काम सारा होता जा रहा है। क्यों भाई? सुपरपोजिशन हो, चाहे थेवेनिन हो, वोल्टेज डिवाइडर हो, सिंपल केसीएल केवीएल हो, मैश एनालिसिस हो, क्या हो रहा था कि कोई एक इनपुट थी, उसकी वजह से आपको आउटपुट फाइंड आउट करना थी। ओके, और आपका सर्किट गिवन था, उससे कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी, उसमें इंडक्टर्स भी थे, उसमें कैपेसिटर्स भी थे, उसमें रेजिस्टर्स भी थे, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस। ओके, इनपुट आपकी जो थी वो करंट सोर्स भी था, हो सकता था वोल्टेज सोर्स भी था। सिमिलरली जब आपसे आउटपुट पूछी जाती थी तो कहा जाता था कि फलां कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मालूम कर दें, ठीक है, या फलां कंपोनेंट में से जो है वो पास करता हुआ करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फलां कंपोनेंट से मुराद हमने आकर एक और टर्मिनोलॉजी ले ली थी, लोड। ठीक है, वो कंपोनेंट जो कि आपका आउटपुट टर्मिनल कंसीडर किया जा रहा है, आउटपुट कंपोनेंट कंसीडर किया जा रहा है। तो हम आउटपुट से मुराद ये थी कि लोड के क्रॉस वोल्टेज या लोड में से फ्लो करता हुआ करंट फाइंड आउट करना। ओके, यहां तक बात पहले थी। अब आपने कहा कि ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर। ठीक, तो ट्रांसफर फंक्शन से जो पहली चीज आपके जहन में आनी चाहिए वो ये
कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है, क्यों भाई? कि अब आउटपुट और इनपुट का रिलेशन तो वही रहा, लेकिन अब जो ये बंदा इंटरेस्टेड है, अब इसको ये फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिससे हम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर पावर और आरएमएस की बुनियाद पर पावर, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज थी ना डिफरेंट, आरएमएस वैल्यूज निकालें जनाब, ठीक है, इसके टाइम डिपेंडेंट इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, एवरेज पावर निकालें। ओके, तो बातें अभी भी वही वाली चल रही हैं कि आउटपुट और इनपुट अपना वही केवीएल केसीएल है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन में अब वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आउटपुट कैसे चेंज हो रही है, इनपुट कैसे उस पर डिपेंडेंट है। बात समझ आई? पहले वो क्या कर रहा था, 4 एम्पेयर का करंट सोर्स दिया, उसके मुताबिक उसने लोड पर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने को कह दिया, ठीक है। फिर उसने कहा कि 4 एम्पेयर की बजाय अगर मैं 8 एम्पेयर का सोर्स लगा दूं, 4 एम्पेयर करंट सोर्स की बजाय मैं 5 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगा दूं, तो फिर वही वाली आउटपुट उसी कंपोनेंट के क्रॉस कैसे वेरी करेगी। अभी तक यहां तक बातें थी। आप बात कर रहा है, वो कह रहा है कि भी वो है तो 4 एम्पेयर का करंट सोर्स ही, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी हर्ट्ज, तो ये रिजल्ट आया है। मैं इसको 12 कर देता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक, यानी कि आज उसने एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। ठीक, आसान तो मैं मुश्किल की समझ नहीं आता, कह रहा है कि आपने बोला, मैंने आसान बोला, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को और आसान बनाने के लिए उसने आज एक और बीच में जो है पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए। सिर्फ काम सारे का सारा वही पुराना ही, ओके। और इस जो कि आपकी करंट वही आप निकाल रहे हैं, ठीक है, करंट इनपुट दिया, आउटपुट वोल्टेज मालूम करने को कह दिया, या फिर क्या था जनाब, करंट निकालने का कह दिया, वोल्टेज सोर्स, करंट ही इनपुट था और करंट ही आउटपुट। ओके, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये लो ओ और ये आई, ठीक, यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। ओके, तो वो ट्रांसफर फंक्शन। अगली अहम बात, जो आज की नई बात, कि ये सब के सब, ठीक है जनाब, फ्रीक्वेंसी के फंक्शंस किया। तब से ही ये बात हमें पता थी कि अब जितने भी वोल्टेज और जितने भी करंट्स हम ले रहे हैं, जो टाइम डिपेंडेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे, टाइम डिपेंडेंट मींस, और उसके बाद उसके आर्गुमेंट में आपने देख लिया ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई की बात, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहले दिन से ही हमें बात पता चल चुकी थी कि अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का जिक्र स्टार्ट हो गया, एसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का जिक्र स्टार्ट हो गया। ओके, आज उसने पूरे का पूरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। सो ट्रांसफर फंक्शन की बात समझ आ गई कि ट्रांसफर फंक्शन क्या चीज़ है, आउटपुट और इनपुट की रेशियो है, ठीक है। और ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपके आउटपुट या इनपुट या ये रेशियो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से किस तरह से बिहेव करेगी। इसका क्या मतलब है, ये हुआ कि भाई जो और जो वो, ठीक, और फिर नेक्स्ट सेक्शंस पे हम जाकर देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ट्रांसफर फंक्शन की थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का इंट्रोडक्शन अगर और उसका अता पता कुछ क्लियर हुआ तो ठीक है भाई। क्या, यस सर, शाबाश। ट्रांसफर फंक्शन के नाम से क्या ज़हन में चीज़ आई? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ठीक है, कि ट्रांसफर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें किसी भी सिस्टम की, सिस्टम समझा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, अब इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि अब रेस्ट ऑफ द लाइफ आपका काम, आपका हाथ, आपका दामन नहीं छोड़ेगी। अभी जल्दी से, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसको कनेक्ट कर सेक्शन,
आप कंट्रोल सिस्टम में यही बातें करते रहेंगे, पूरे कंट्रोल सिस्टम में। एक छोटी सी एग्जांपल पर, ठीक है। उसके अलावा फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह के सब्जेक्ट। ओके, सो ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके जनाब, हमने कहा कि इनपुट और आउटपुट और कोई भी नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क हो सकता है ये, या कोई भी अभी तक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकता है, अगर हम जिंदगी को बात को सिंपल करते हैं। ओके, और सॉरी, ये जो वोल्टेज की रेशियो है ट्रांसफर फंक्शन, उसको हम वोल्टेज गेन और सिमिलरली जहाँ पर आपके पास रेशियो जो है वो करंट की हो, इनपुट भी करंट की और आउटपुट भी करंट की, या जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका एग्जामिनर है, वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि अगर मैं करंट के लिहाज से दोनों पैरामीटर्स को देखूं, कि अगर मैं करंट को ही इनपुट के तौर पर ट्यून करूं तो आउटपुट पर करंट की ट्यूनिंग, आउटपुट पर रिजल्टेंट करंट क्या आएगा, तो इस तरह की रेशियो बनेगी और इसको हम करंट गेन कहते हैं। ओके, तो अब मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि वोल्टेज गेन क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इसमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर लगे हुए हैं, और वोल्टेज गेन मुझे मालूम करना है, वोल्टेज गेन क्या होता है, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात करेंगे कि रेशियो ऑफ वैल्यू, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेशियो ऑफ आउटपुट, ठीक है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आप मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी के लिहाज से और आप उसका फेज फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखना चाह रहे हैं। ओके, वी आर फेज एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन वोल्टेज, ठीक है। इस तरह करंट गेन की है V ओवर I, पहले भी हमने सुना है, वेरी गुड। इम्पीडेंस V इज इक्वल टू IZ से, ओके, सो इट इज ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन ऑन द सेम पैटर्न। अगर आपसे ये सवाल हो जाए या आप कहीं पर ये टर्मिनोलॉजी पढ़ें कि ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन या इम्पीडेंस फंक्शन, ओके, तो आपके ज़हन में यही सारी बात जिस तरह भी आपने वोल्टेज गेन के बारे में कही कि नो वी आर इन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेशियो ऑफ आउटपुट और इनपुट, बात आप जो है वो जो आप दे सकते हैं, आपके ज़हन में स्केच बन सकता है। तो सिमिलरली ये क्या हुआ जनाब, अगर ये इम्पीडेंस है तो ये एडमिटेंस हो गया। आपसे पूछ, ट्रांसफर फंक्शन मीन आउटपुट एंड इनपुट रेशियो ऑफ अ नेटवर्क, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ट्रांसफर फंक्शन मीन्स phase and magnitude plots of ratio of electric circuit where they depend on the frequency, a frequency dependent phasor and magnitude plots. ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये है रेशो, और रेशो में हमें ये बात, वो नोमिनेटर, ठीक है। अब ये मुमकिन है कि नोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा है। ये भी मुमकिन है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो अब टेक्निकली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास इन दोनों कंडीशंस के लिहाज से दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दो सिचुएशंस हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन, ठीक, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा कोई सवाल है ध्यान में, कोई बात समझ नहीं आ रही? नहीं कुछ कर रहा है, ओके। अच्छा जनाब, अगर ट्रांसफर फंक्शन में, अभी हम ट्रांसफर फंक्शन तक महदूद रहते हैं, वैसे ये दूसरे लिहाज से भी है, जनरल टर्म्स हैं,
अगर आपके ट्रांसफर फंक्शन में नोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है, कैसे होती है वो अगला स्टेप अभी हम बताते हैं। अभी फिलहाल सिंपल, अगर नोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है, अब व्हाटसोएवर यहां पर जो भी चीज है, नहीं, फंक्शन तो जो है वो 0 हो जाएगा, जो आउटपुट का रिस्पॉन्स है यानी कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो भी 0 वैल्यू देगा आपको। ओके, लेकिन अभी हम सेपरेटली नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, वो सिचुएशंस या वो पॉइंट्स या वो सॉल्यूशंस, या अगर मैं टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो रूट्स जहां पर आपका नोमिनेटर 0 होता है उनको हम जीरोस कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म, जीरोस। ठीक, रूट्स की बात हुई, क्या मतलब के आपको पता है, बता दें यार। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, नाम सुना हुआ है ना? हाँ, क्या था भला? मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन थी 4x² -64 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 3x + 2 इज इक्वल टू 4। कोई भी इक्वेशन थी आपके पास, जितने भी मर्जी ऑर्डर की हो, जो इसमें अननोन वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू अभी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, वो नंबर्स जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उनको हम कहते हैं इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी और उसके भी रूट्स थे। ठीक है, जस्ट वैसे ही आपकी मेमोरी को मैं थोड़ा जगाने की कोशिश कर, तो वो सॉल्यूशन पॉइंट्स या वो इंसिडेंट्स, वो मौके, वो लोकेशंस जो भी आपके सब्जेक्ट के लिहाज से इसका नाम बनेगा, ठीक है, या वो नंबर्स, यहां पर मिसाल के तौर पर क्या बनता है 4। ठीक है, 4² 16 × 4 64 - 64, तो 4 इज द रूट। आप जहां मर्जी दुनिया में घूमते रहें, आप लोकेशन 1 पर चले जाएं, आप लोकेशन 1098 पर चले जाएं, ठीक है, तो ये फंक्शन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आप आएंगे x = 4 पर, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह ही हाँ जी, यहां पर क्या होगा, x की क्या वैल्यू रखूं जिसमें 5 ऐड करूं, तो जो आप 3 से कैंसिल आउट होगा, 2 + 2 = 4। दैट्स वन ऑफ द रूट। ये और भी रूट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो रूट्स वाली बात वो थी। अब्दुल्ला चलें आगे, सॉरी मुस्तफा, ठीक है, शरिया, ठीक है, एंजॉइंग, up to you. I am trying my level best. Okay, so getting understand? Okay, no, that's okay. ठीक है, हमारा गोल भी यही, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ आ रही है और चाहे आप लुत्फअंदोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें से बस नहीं ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, वो तो मैंने जस्ट जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए कहा था कि हम यहाँ पर जो है वो मजे लेने के लिए। ओके नहीं यार, नहीं ऐसी कोई बात है। ना यार, ये फिर अब जाती है। ठीक है, कि हम तकरीबन कोई हमें आधा घंटा हो गया, ठीक है, और हम जो है ना वो इल्म के समंदर, तो उसमें जो है ना ड्राइनेस काफ़ी आ जाती है टेक्निकली डिस्कशन करते हुए। तो उसमें थोड़ा सा ज़रा अगर तूफान या इस तरह का ह्यूमर कोई एलिमेंट डाल दिया जाए। अब इसे करूँगा ना मैं, अब इसका हरगिज़ भी मतलब नहीं, आप इसको ना ट्यून करना शुरू कर दें कि अच्छा यार ये वाली बात है। ओके, ऑल्दो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ से अगर डिस्कशन थी तो उसमें हमने ना मुख्तलिफ इवेंट और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ इस तरह याद की हुई थी। ठीक है, अच्छा हाँ, वो टर्मिनोलॉजी जिसमें ये वाला वाक़या हुआ था, तेनू है क्या सी, मैनू है क्या सी,
ठीक है, तो ये एक साइड बेनिफिट, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम कि इट्स ट्रू फॉर एवरीवन। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन आपको जो है ना वो किसी की बाउंड्री लाइंस का ख्याल रखना, ठीक है, ऐसा ना हो कि इससे कोई हर्ट हो। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था, ठीक है शया, मैं जो है ना क्या शहरियारी का है, ये भी एक इवेंट हो गया ना, ठीक है, कि ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाते हुए सर ने कहा था शहरियार, और अब्दुल का सर नहीं शहरियार कह रहे थे। ओके सो अगर मेरी वजह से कोई दिल आजारी या कोई ऐसा हुआ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ऑफिशियली जो है ना रिकॉर्डेड सॉरी कर रहा हूँ। ओके सो ठीक है, चलें आने वापस, इफ यू आर फीलिंग लिटिल बिट फ्रेश। ओके जनाब, तो बात ये हुई कि अब चूंकि ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो एक रेशो है, रेशो का मतलब ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो सकते हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसी जगह आ जाए या कोई ऐसा पॉइंट आ जाए, कोई ऐसा नंबर आ जाए जहाँ पर अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ना डिफरेंट चीज़ें आएंगी, तो इस लिहाज से मैं डिफरेंट बातें, डिफरेंट अल्फाज बोल रहा हूँ, जहाँ पर नोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इस चीज़ को आप टेक्निकली कहते हैं कि इट्स ज़ीरोस, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि जनाब, या आपसे कहा जाए या आप कहीं सुने कि इस ट्रांसफर फंक्शन का 0 4 है, ठीक है, तो आपको ये बात समझ आएगी कि एट द लोकेशन x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 2/3 इस फंक्शन का जो नोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। ओके, अब वो नोमिनेटर कुछ भी हो सकता है जो आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि ये करंट गेन है और इसकी रूट जो है, या तो करंट गेन है और इसका 0 4 है, वन ऑफ द जीरोज इज 4, ठीक है। अब इस सारी की सारी कहानी को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? करंट गेन मींस कि आउटपुट करंट की फॉर्म में, ओके, और करंट 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू 4 होगी। ओके, बाय द वे अगर किसी कंपोनेंट में से करंट 0 हो जाए सब, तो एक इंजीनियर के जहन में ये आएगा कि अगर मैंने रजिस्टर की वैल्यू 4 रख दी, फॉर एग्जांपल x से मुराद आपका रजिस्टर, तो मेरा लोड जो है वो एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा। सिर्फ और सिर्फ जुमला क्या था? करंट गेन इस करंट गेन इज 4। इसका मतलब है कि आउटपुट की बात, करंट गेन से ये बात पता चली कि आउटपुट जो है वो करंट है, ठीक है। जीरोज का मतलब है कि नोमिनेटर 0 हो गया, ओके। फिर बाकी तशरीह सिचुएशन के मुताबिक आपने, या मैं इसकी इंपॉर्टेंस के लिए बता रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी साथ से याद रखें। ओके, अगर 0 हो जाए फंक्शन तो इनफाइनाइट हो गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ठीक। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्या जो इसका डिनोमिनेटर है जिन लोकेशंस पर या जिन पॉइंट्स पर 0 होता है, रूट्स जब डिनोमिनेटर की 0 होती हैं तो उसको हम टेक्निकली पोल्स कहते हैं, ठीक, जीरोस एंड, फर्ज करें यही इक्वेशन हमारे पास डिनोमिनेटर में थी, तो हमने कहा कि इस ट्रांसफर फंक्शन का, इससे मुराद कोई भी ट्रांसफर, कि ट्रांसफर फंक्शन का एक पोल जो है वो 4। इसका मतलब ये है कि जनाब अगर आपने 4 की वैल्यू एंटर की तो आपका ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू देगा। इनफाइनाइट तो थ्योरेटिकल है ना, हमारे पास इनफाइनाइट का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास इनफाइनाइट का मतलब क्या है? वो जो हमने पहली दफ़ा, यस, मैक्सिमम, जब हमने पहली दफ़ा शॉर्ट और ओपन सर्किट की डिस्कशन की थी, जब हमने इनफाइनाइट को डिफाइन किया था, इनफाइनाइट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और उसमें हमने एग्जांपल ली थी, केसीएल की हेल्प ली थी, लोड के ऊपर 4 मुख्तलिफ या 2 मुख्तलिफ तरफ से करंट आ रहा है या जा रहा है, और उनमें से एक रास्ता शॉर्ट हो गया, तो सारे का सारा करंट वहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक।
तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट मतलब कि वहां पर था ही इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट इज अ रेफरेंस टर्म। ठीक, आज क्लास में कौन नहीं है? इब्राहिम, फॉर एग्जाम्पल अगर इब्राहिम भी बैठा होता तो हम कहते आज क्लास में इनफाइनाइट बच्चा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी इतनी थी ना भाई। ठीक है, अभी मैं वो अप्लाइड फिजिक्स की क्लास पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो वहां पर अराउंड 70 की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो वहां पर अगर इतने बच्चे आए हुए जितने आपकी स्ट्रेंथ है 14, तो फिर एटलीस्ट इनफाइनाइट नहीं कह सकता मैं वहां पर ना। तो इनफाइनाइट इज अ रेफरेंस टर्म। ठीक है, बात समझ आ गई? बच्चे यहां पर भी 14 आए हैं, बच्चे वहां पर भी 14 आए हैं। ओके, लेकिन वहां पर जो है वो 14 की स्ट्रेंथ। सो दैट्स वी ट्रांसलेट द टर्म इनफाइनाइट। ओके ओके, तो हम कह रहे हैं कि जनाब अगर आपसे ये वाली डिस्कशन की जाए कि जनाब ये ट्रांसफर फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो रहा है एट लोकेशन 4, तो इसका मतलब है कि इसका पोल 4 पर है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, हाँ वो यहाँ से कहानियाँ शुरू होंगी शॉर्ट ओपन में। ओके, कि किस किस्म का फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट, मतलब पोल्स 0 हो रहा है। ओके, या अगर कोई आपको कह दे कि एट लोकेशन 4 ट्रांसफर फंक्शन इज इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है कि पोल, या फिर अगर आपसे कोई ये कह दे कि इस ट्रांसफर फंक्शन का या इस सर्किट का एक पोल कंट्रोल सिस्टम्स में या इस इक्वेशन का एक पोल जो है वो 4 पर है, एट एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, या इस जगह पर ये मैक्सिमम अलाउ कर देगा। ओके, गॉट इट? Okay, so these are the simple terminologies associated with the transfer function, poles and zeros and poles. Okay, so let's jump to the practice problem 14.1. Please read it out. कोई है बुक आप लोगों के पास? हाँ हाँ, वो मुझे रीड आउट कर दें। चला मैं आपके पास रीड आउट कर लेता हूँ जी प्लीज़। नहीं मेरे पास है बुक, आप इसको रीड आउट कर दें लाउडली ताकि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.1। ये मुझे मिटाना हो, सॉरी। ओके, अब मैं वो कह रहा है कि जनाब एक आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओके, ये जो नेटवर्क था जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको आपने कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट इसकी तरफ आया, ठीक, जो भी हमने थ्योरेटिकल बात की। अब उस नेटवर्क को वो ट्रांसलेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास जनाब, जिसमें आपकी इनपुट जो है वो रही ये Vs, उसके कुछ उसने आगे वैल्यू दे दी है कोसाइन वगैरह। ओके, और इसमें कंपोनेंट जो है वो कोई रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है ना, इज द इनपुट, और ये जो हम नेट आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है जनाब, उसने कहा कि ट्रांसफर फंक्शन मालूम करें, आगे बोलिए, फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आरएल सर्किट। ओके, उसने ट्रांसफर फंक्शन को आगे डिस्क्राइब किया है या हमने खुद ही जज करना है कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है? जी, तो उसने डायरेक्टली आपको ट्रांसफर फंक्शन बता दिया कि वी नॉट ओवर वी एस। अगर वो ना भी बताता तो गिवन सर्कमस्टांसेस में वो आपसे वोल्टेज गेन की बात कर रहा है। ठीक है, क्यों मैं मुश्तबा कुछ चल रहा है साथ की नहीं? पक्की बात? हाँ भाई मास, ठीक है। ओके, सो अब अगला मरहला,
फाइंड आउट किया जाए। तो जो है वो यूटिलाइज करना है आपके पास नंबर ऑफ। अब हम चूँकि करेक्ट कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेक्शन को, तो मैं यहाँ पर कुछ रब करता हूँ चीज़ें। ठीक है जी। ये भी चाहिए हमें जी। बोलिएगा ज़रा जल्दी से। इस सर्किट में वी नॉट कैसे फाइंड आउट, चलें हम स्टेप बाय स्टेप चलते। वी नॉट ही कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जी बोलिए शाबाश। ओके ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आपके पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है वो टाइम डोमेन में है, क्योंकि उससे पहले आपको इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जी ओमेगा एल और आर वैसे है। अगर यहाँ पर कैपेसिटर होता तो आप 1/j सी। ये स्टेप नंबर 1 पूरे सब्जेक्ट के लिए ये ट्रू है। ठीक है। अगर तो आपको सर्किट जो है और डेरिवेटिव्स और 1/j आर द रेसिप्रोकल्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेजर इंडक्टर एंड फेजर। Impedance of an inductor in the phasor form is j omega l. Impedance of a capacitor in terms of phasor is 1/j c. ओके, सो आपने वो कन्वर्ट कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे आप? वोल्टेज डिवाइडर KVL। ओके, अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगाता हूं तो वोल्टेज डिवाइडर मुझे ये कहता था कि जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है, P नॉट इज इक्वल टू व्हाट, इसकी इंपीडेंस को आप नोमिनेटर में रखेंगे डिवाइडेड बाय जो इंपीडेंस इज सी के। तो फिर हाँ जी, सवाल है इसका जवाब नहीं। वोल्टेज डिवाइडर में अगर जिस अभी हमने बात की ना कि जो इंपीडेंसेस सीरीज में हैं उनको ऐड करना आपने, ठीक है। तो यहां पर एक सवाल आ सकता है, मुश्तबा कर लो ना यार ये सवाल कर लो ना कि अगर सीरीज में ना होती तो फिर आप कैसे ऐड करते, पैरेलल में कैसे करते? ये मुश्तबा का सवाल है कि नहीं है? ओके हाँ, तो फिर पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे अप्लाई करते हैं उसमें? बात ये जी, दो वेरी गुड। तो वो कह रहे हैं कि मसला ये हल हो गया, इनपुट की जो वैल्यू गिवन है वो तो वहां पर है। एक जवाब ये है, बहुत अच्छा जवाब है। एक जवाब मेरे पास भी, अप्लाई करने की कंडीशन ही ये है कि इम्पीडेंस इज सीरीज में। पहली कंडीशन ही वोल्टेज डिवाइडर की है। इस तरह करंट डिवाइडर की पहली कंडीशन ये है कि पैरेलल में इम्पीडेंसेस होनी चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपोनेंट्स सीरीज में है मुश्तबा, इनके अक्रॉस क्या नाम है अपना, नहीं इकरा, हाँ इकरा, जो वाली बात यार सीरीज में हो उनके अक्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए, आपके सर्किट का वोल्टेज नहीं। तो बिना याद के जब हम लैब में बैठे हुए, राइट, इतना भी गजनी नहीं है ना। ओके गुड, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन पे तो हाथ साफ रखना चाहिए आपको। तो इनके अक्रॉस आपको वोल्टेज भी मालूम है, ये R प्लस जे ओमेगा एल इज इन पैरेलल टू दिस वोल्टेज सोर्स, और उनके मुताबिक इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम, ठीक है जी। सो ये वाली बात आ गई यहाँ पर। वोल्टेज डिवाइडर के लिए तमाम कंडीशन सेट है, तो हम वोल्टेज डिवाइडर लगा लेंगे, KVL भी लगा सकते हैं। ओके, सो जनाब आपने अगली बात ये की कि इंपीडेंस ऑफ द आउटपुट डिवाइडेड बाय सीरीज इंपीडेंसेस, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो इन जी जो इनके अक्रॉस वोल्टेज होगा, और लकीली वो यहां पर इनपुट वोल्टेज ही है डिनोमिनेटर। ओके, हाँ जी अब्दुल्ला, हमारा काम क्या था और हम किस तरफ चले गए? हमारा टास्क क्या था?
हमारा क्वेश्चन क्या है? रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, उसने ट्रांसफर फंक्शन की टाइप भी बता दी है कि वोल्टेज गेन। तो अब मेरी रिक्वेस्ट पहले आपसे मैं कर चुका हूँ कि चाहे वो वोल्टेज गेन कहता, चाहे वो ट्रांसफर फंक्शन कह देता, तो आपको ये बात समझनी चाहिए, इन बिटवीन द लाइंस आपने पढ़नी, ठीक है। उसकी मेहरबानी है कि उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि V नॉट ओवर VS। ओके, सो अभी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास। अब हम क्या करें? वी डोंट हैव द वैल्यूज, और इनफैक्ट हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं, हम तो इंटरेस्टेड हैं ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन है ये आउटपुट ओवर इनपुट, तो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ना कि आउटपुट की वैल्यू निकालना। अब ये चेंज है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपसे पहले की हमारी प्रैक्टिस यही रही है कि हमने आउटपुट की वैल्यू निकाल, लोड के ऊपर, लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालें, लोड में से फ्लो करता हुआ करंट निकालें, ठीक है। अभी तक बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी बात करने का तरीका मुख्तलिफ है। ओके, सो V नॉट ओवर VS का टारगेट हमारे पास है, और हम यहां तक आ चुके हैं। क्या करें? हमें ओके इकरा, हमने फाइंड आउट क्या करना है पहले ये मुझे आप बताएंगे। हमने फाइंड आउट क्या करना है? ट्रांसफर फंक्शन V नॉट ओवर VS फाइंड आउट करना है कि V नॉट ओवर VS की क्या वैल्यू आ रही है। इट कुड बी इन नंबर्स, अनफॉर्चुनेटली उसने नंबर, यार मेरी बात सुनना, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो सवाल है मुझे बताओ ताकि मैं उसको अपने लिहाज से बताऊँ। अब अगर तो उसको नंबर्स में आंसर चाहिए होता तो इनपुट वो नंबर्स में दे रहा होता ना, कि 5 ओम का रजिस्टर है, 10 हेनरी की इंडक्टेंस है, उसने जनरल नंबर्स रखे हुए हैं। इट मीन्स कि जो उसको आंसर चाहिए वो भी एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में चाहिए। ओके, सो क्या कह रहे हो मैर? जी प्लीज, हाँ हाँ बताओ। इसका कहना ये है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि नहीं करता हूँ, अलग बात। कह रहे हैं आपका इंटरेस्ट है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने में, यानी कि इन अदर वर्ड्स उसने खुद भी बता दिया कि आपका इंटरेस्ट है V नॉट ओवर VS फाइंड आउट करने में, तो वो तो आपने निकाला होगा भाई। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आपकी आंखों के सामने है, तो मसला क्या? क्या क्वेश्चन में भी बात पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रीड कीजिए जी। नहीं, अभी वो क्या कह रहा है? ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर लिया उसने? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो पहला स्टेप तो ये है कि क्या आपने ये फाइंड आउट कर लिया है ट्रांसफर फंक्शन इस तरीके से? कामरान नहीं, तो फिर नहीं भाई, ये सिर्फ उमैर का मानना है अभी तक। अब्दुल्ला, अगर हो गया तो अगला मरला तुमने ही जवाब देना था, इसीलिए पहले दिल से आवाज आ रही। दिल से इतनी हल्की आवाज नहीं आती क्यों भाई? हाँ भाई अवैस, दिल से कैसे आवाज आती है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। सो अगर दिल से आवाज आ रही है तो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अगर इसकी जगह पर उसने नंबर्स दिए होते तो फिर हम यहाँ पर नंबर्स की वैल्यू पुट कर देते। ओके, फॉर द टाइम बीइंग उसने ये वाली बात की। क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ, अगला पोर्शन। हाँ जी, नहीं अगला क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा है, वो बात अभी उसकी जारी है। जस्ट अ सेकंड। स्केच द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जी ये वो चीज़ थी जो मैं सुनना चाह रहा था। क्वेश्चन में उसने लिखा है कि स्केच द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब हम इस तरफ आ रहे हैं, आपकी बात जो पहले आप करना चाह रही थी, ठीक है। तो उसने पहले पोर्शन में आपसे कहा है कि ट्रांसफर फंक्शन मालूम करें। ट्रांसफर फंक्शन V नॉट ओवर VS है, तो पहला मरला तो ये था ना कि कैसे निकालना है। ओके,
तो पार्ट ए तो उसका था ये वाला, ओके। अगले पार्ट पर वो आ रहा है कि उसको स्केच भी करें, ट्रांसफर फंक्शन को स्केच करें। हमने जब अभी डिस्कशन की तो हमने कहा कि ट्रांसफर फंक्शन से मुराद ये, ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करते हुए कि वो इंटरेस्टेड है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे बिहेव कर रहा है, उसका फेज कैसे बिहेव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज, ओके। सो अब आप यहां पर अपने एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सॉरी नंबर, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इसका फेज वाला पार्ट जो है वो अलहदा कर लेते हैं ताकि हम उन दोनों को स्केच कर सकें, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एक फॉर्मूला था कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और वो इस फॉर्म में हो, 1/इम्पीडेंस हो, ठीक है। ये हमने जब फेजर्स को डिस्कस किया था तो फेजर्स की प्रॉपर्टीज में ये बात हमने की। इसका रियल पार्ट क्या होगा, वो भी रेसिप्रोकल में होगा, और जो इसका एंगल होगा वो माइनस ऑफ फाई होगा। और फाई आपको याद था, फाई क्या होता है, इनवर्स ऑफ tan y/x या इमेजरी ठीक। तो ये वाली चीज हमें यहां पर हेल्प दे सकती है कि हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को किसी तरीके से इस वाले फॉर्मेट में ले आए। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप इसी ट्रांसफर फंक्शन को मैग्नीट्यूड और फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरी गुड, गो अहेड, ठीक है। अगर वो अपेरेंटली पॉसिबल नहीं है, अपेरेंटली डिफिकल्ट है, ठीक है, तो फिर आपको कोई दूसरा ऑल्टरनेट वे देखना है, और जो करीब तरीन ऑल्टरनेट वे है वो ये वाला। अनफॉर्चुनेटली ये वो स्टेप था जिसका जवाब हमने झंझोड़े दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए मास ओके। सो अब मैं ये ट्राई करूं कि भाई मैं 1/, की फॉर्म में कैसे आ सकता हूं, ओके। 1/, की फॉर्म में डिनोमिनेटर में मुझे 1 करना है, हाँ, तो क्या करूं, कैसे करूं, 1 करना हो तो क्या ट्रिक यूज करूं, कैसे कर सकता हूं, किन को, आप इनको अलहदा अलहदा लिख सकते हैं, मतलब जे इधर इधर जे ओमेगा नोमिनेटर में मैं इसको, आप कह रहे हैं कि डिवाइड कर दूं आर से, तो मुझे यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा, यानी कि जो काम आपको नोमिनेटर में करना है वही काम आपको डिनोमिनेटर में भी करना है ना जी। तो अगर मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आर से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, तो ट्राई कर लेते हैं, वेरी गुड। और नहीं सॉरी, आर से डिवाइड कर रहे हैं आप, जी। नोमिनेटर में 1 नहीं आ रहा अभी भी, वेरी गुड। खैर यार सोचो, नोमिनेटर में 1 लेके आना है और डिनोमिनेटर में मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई की फॉर्म में टर्म लेके आनी है। इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन यही है ना, जी अवैस, शाबाश, ओके। जे ओमेगा एल से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एल, ओके, यहाँ पर 1 आ गया, हाँ जी बोले, हम्म, ओके सॉरी, हाँ जी, इसको जब मैं अंदर ले जाता हूँ, 1/जे ओमेगा एल था ना, इसको जब मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये टर्म भी 1 हो गई, हाँ जी।
अवैस का कहना मान लें? नहीं, जब तक तुम नहीं कहोगे मुश्तबा मैं नहीं मानूंगी। पक्की बात है। अवैस के मुताबिक अगर हम जी ओमेगा एल कॉमन लेते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, या इन योर वर्ड्स अगर हम ऊपर और नीचे जे ओमेगा एल से डिवाइड कर देते हैं तो 1/1 प्लस these should be in the form of complex number x plus j। तो अब ठीक है, ऊपर नीचे अगर मैं j से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर j स्क्वायर -1 और ये -1, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे कोई बात समझ आ रही है कि ये जो r आपको लिखा, ओके, इट इज ओके 1 प्लस r स्क्वायर ओवर ओमेगा एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस रियल जो नंबर है उसका स्क्वायर जे के अलावा, ठीक है यार। x प्लस जे ओमेगा की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे नहीं होते, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो वो आ गया आपके पास, ओके। और इसके बाद फिर इसका अंडर रूट भी होगा, ओके, ठीक है जनाब। अब इसमें यहां पर वो एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसका इंटरेस्ट है कि जो भी उसने फंक्शन ड्रॉ करना है वो उसने फ्रीक्वेंसी के लिहाज से करना है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपका फंक्शन निकला है, वो भी सब के सब फ्रीक्वेंसी के ही फॉर्म में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर जो कि अपेरेंटली जो है वो उसकी फॉर्म में नहीं है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मैं ओमेगा नॉट, अच्छा ये ओमेगा नॉट क्या, हम इस पर पहले ये वाला जो है फिर हम इसके ऊपर आए, ठीक है। अभी नई कहानी शुरू करने से पहले लेट्स सपोज कि हमने आर ओवर एल को, क्लास कितने बजे करेंगे, ओके, लेट्स सपोज कि आर ओवर एल को हम ओमेगा नॉट के बराबर पुट करते हैं। सो ठीक है, ये जो नई टर्मिनोलॉजी डिफाइन अभी डेवलप हुई है इसको भी हम डिफाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ओमेगा नॉट इज इंपॉर्टेंट टर्म। वो क्या होता है वो उसको भी हम देखते हैं, ओके जनाब। सो अगर मैं इसको जो है वो इन्वर्ट करके 1/, की फॉर्म में ले जाता हूँ तो फिर मेरा जवाब जो बनता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पर ये 1/, गिवन टर्म है ना, 1/z इज इक्वल टू दिस। सो मैग्नीट्यूड निकाला था, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड का पार्ट है वो रहा हमारे पास 1/z 1/, यहां तक हम पहुंच चुके, पक्की बात है। क्यों भाई, क्या नाम है अपना, अब्दुल्ला, ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या थी जनाब हमारे पास, दूसरी चीज हमारे पास थी फेज, ठीक है। फेज हमारे पास था नेगेटिव ऑफ दिस, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, इनवर्स ऑफ 10 y ओवर x, x इज 1, तो यही वाला फंक्शन बनेगा, ठीक है जी। और नेगेटिव, अब बात मुकम्मल हो गई कि अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में हो तो उसका फेज निकालने के लिए जो फेज होगा उसका आपको नेगेटिव जो है वो करना, ठीक है। तो बात समझ आ रही, ओके। सो दैट्स आवर ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और फेज,
यानी कि अब हम तैयार हैं उसके सवाल का जवाब देने के लिए, जो कह रहा था स्केच द ट्रांसफर फंक्शन, स्केच द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कि हमने शुरू में कहा कि अगर वो स्केचिंग की बात करता है या ट्रांसफर फंक्शन से हमारी क्या मुराद है कि जो मैग्नीट्यूड है और उसके लिहाज से आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो फेज़ क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी तो फेज़ क्या होगा। ठीक, इन सवालात का जवाब देने या स्केचिंग करने के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं जब हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल ली। राइट, सो मैं वहीं पर ही स्केचिंग कर देता हूं। जनाब, सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाए, ओमेगा नॉट को डिफाइन किए बगैर जाने नहीं देना, ठीक है, याद रखना। ओमेगा नॉट की वैल्यू जीरो रखी है, ओके। यानी कि मैं इस पॉइंट पर अपने एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में इंटरेस्टेड हूं कि जब मैंने फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं किया, ओके, जब मैं फ्रीक्वेंसी को जीरो रख दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं डीसी स्टेट में आ गया, डीसी में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स, ये डीसी स्टेट की बात की हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने इस सर्किट के मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जो गिवन सर्किट था। इस सिचुएशन में अगर मैंने ओमेगा को रखा जीरो, 1/0, वेरी गुड, 1 प्लस इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, 0। आ रहा नजर भाई कि नहीं? ठीक, सो मेरा मैग्नीट्यूड स्टार्ट में 0 होगा, ओके। एक और क्विक चेक, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक, 1/इनफाइनाइट, 1 प्लस 0, 1/1, omega is equal to infinity implies according to frequency, कंक्लूजन, एक तरह से हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती मुश्तबा, फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के लिहाज से जो हमारा सर्किट है इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन 1 होगा। कैरी की है बात आपने, ठीक है। मैग्नीट्यूड की डिस्कशन नहीं हो रही कि अगर मैं इनपुट का मैग्नीट्यूड वेरी करूं, अगर मैं आउटपुट का मैग्नीट्यूड फलाना रखना चाहूं, यह बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि अगर मैं इनपुट की फ्रीक्वेंसी, अगर मैं आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इन दोनों की रेशो को मैक्सिमम कर दूं, ट्रांसफर फंक्शन की फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कर दूं, आउटपुट की, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कर दूं, तो ये वाला जो फंक्शन है ये मैक्सिमम 1 का नंबर देगा। यानी कि ये, और जब मैं मिनिमम कर दूं फ्रीक्वेंसी तो 0, तो ये वाला ट्रांसफर फंक्शन आपका 0 और 1 के दरमियान रहेगा, इसके दरमियान नहीं खेलेगा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, ये एक कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि अगर ये इनफाइनाइट की तरफ कहीं जाते हैं हम, तो वो 1 का नंबर आ गया, ठीक है। एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको करो। अगर ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाए, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, तो ये टर्म 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4, 1 डिवाइडेड बाय
ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है जब ये जो ओमेगा है ओमेगा नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या है, अब हम उसको डिफाइन करने लगे। तो हमारा ये जो मैग्नीट्यूड है ये 0.7 पर चला जाएगा। 0.76। ठीक, ओमेगा नॉट को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, कट ऑफ का मतलब ये कि या तो आप इससे पहले वाली चीज में इंटरेस्टेड हैं या इससे बाद वाली चीज में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, वो अगर बाद वाली चीज है या इससे पहले वाली चीज है, इससे पहले वाला सिग्नल है या इससे बाद वाला सिग्नल है, तो वो आप कैसे अटेन कर सकते हैं या किस एविलंच पॉइंट के बाद वो आएगा, ये इंफॉर्मेशन हमें देती है ओमेगा नॉट की। ठीक, अगर आप सर्किट एलिमेंट्स की टर्म्स में बात करना चाहते हैं कि रेजिस्टर और इंडक्टर की मैं क्या वैल्यू रखूं, या जनरली अपने सर्किट के पैरामीटर्स की, अपने सर्किट के कंपोनेंट्स की मैं क्या वैल्यू रखूं कि फलां फ्रीक्वेंसी पर, अब ये जो फलां है ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है जो आपको सवाल में पूछी जा सकती है कि मिसाल में 40 हर्ट्ज के ऊपर ये काम करो। ओके अब्दुल्ला, आपसे कहा गया कि 40 हर्ट्ज के ऊपर आंसर 0.707 आना चाहिए। ठीक है, या 40 हर्ट्ज के बाद वाला सिग्नल मेरे पास आए, 40 हर्ट्ज के पहले वाला सिग्नल मेरे पास आए, 40 हर्ट्ज के पहले वाला सिग्नल मेरे पास आए, 40 हर्ट्ज के बाद वाला सिग्नल मेरे पास आए। तो जो 40-40 की बात हो रही है, जो आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट्स योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्केल जो कि 0 से इंफिनिटी तक फैला हुआ है, इसमें से 40 गीगाहर्ट्ज को आपने ये मुकाम दिया कि वो आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे ये वाले पैरामीटर्स कैसे बिहेव करें, तो ये वाली बात कि आपने आर और एल की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो 40 आ, वो जो कट ऑफ कर रहे थे ना कि 40 से पहले 40 के बाद। ठीक, ये अब आपके हाथ में है, हो सकता है कि इसके अलावा भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे कह दें कि जनाब रजिस्टर तो आपके पास लैब में है ही 80 ओहम के। ठीक, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि आप इंडक्टर 2 हेनरी का चूज करें। ठीक है, सो अब वाइस वर्सा चले। अगर आपके सर्किट में 80 ओम का रजिस्टर और 2 हेनरी की इंडक्टेंस लगा दी जाए, तो ये सर्किट जो आपको ट्रांसफर फंक्शन देगा वो 40 हर्ट्ज के ऊपर आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, इसको अगर मैं 80 की बजाय 100 कर दूं तो मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगी। सेम सर्किट, सेम कॉन्फ़िगरेशन, अगर रजिस्टर की वैल्यू मेरी 100 ओहम हो गई तो मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे आ गई। यानी कि अब 40 की बजाय 50 वाला सिग्नल जो है उसकी बात हो रही है कि 50 से पहले वाला सिग्नल जाने दो, 50 के बाद वाला सिग्नल ना आने दो, ये वाइस वर्सा। क्यों भाई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डिस्कशन समझ आ रही है? अब्दुल्ला अगर नहीं बात तो दोबारा से बताओ, जल्दी करो, टाइम कम रहेगी। ठीक है, ओके, सो अगर हम बाकी भी पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो जो हमारे पास फिलहाल प्लॉट निकलेगा वो काइंड ऑफ इस तरह से। ठीक है, और अच्छा, ऑन द सेम पैटर्न अगर आप ओमेगा नॉट और ओमेगा की ऐसी ही वैल्यूज रखें, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 रखें, तो आपको पता है कि इनवर्स ऑफ tan किस जगह पर जाकर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, वो आपकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, जबकि अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो रखता हूँ इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, इनवर्स ऑफ टेंजेंट 0 0 पर। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो प्लाट है वो इस तरह से कुछ।
ओके अगर हम बीच वाले पॉइंट्स भी, और ओमेगा ओमेगा नॉट तो ये 45 डिग्री बनेगा, जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आएगा। ठीक है जी, पक्की बात है। तो ये बात एक। अच्छा जी, अब अगर मुझे यहीं से ही वैसे तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.2 मेरा प्लान था, लेकिन मैं यहीं पर ही रहता हूँ। अगर मुझे यहां पर पोल्स की डिस्कशन करना है, ठीक है, तो मेरे पोल्स किस तरफ आ रहे हैं? अगर मैं यहां पे चला जाऊं, ठीक है, यहां पर मुझे आसानी है। यहां पर अगर मैं कहूं कि यही ट्रांसफर फंक्शन है, इसके जीरोस कहां पे? 14.2 जो है ना वो हम फिर क्विज के अंदर करेंगे, ठीक है। 14.2 का क्विज है, इतना ओपन पेपर। ओके ओके, हाँ जी, जीरोस कैसे निकालने हैं इसके? j omega L is equal to, frequency is not equal to 0, otherwise you will be in the DC state. Okay, so you have only the one option, that inductance, अगर मैं इसी ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा हूं, अगर इंडक्टेंस की वैल्यू 0 रखेंगे आप, तब इस फंक्शन के जीरोस आएंगे, अदरवाइज इस फंक्शन का जीरो नहीं आ रहा कहीं पर भी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपकी जिम्मे लगाई गई है उसमें 2 और 3 के ऊपर जो है ना वो जीरोस आ रहे हैं, यानी कि अगर आप एस की वैल्यू, जे ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रखते हैं तो फिर ठीक है। अगर मैं अपने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात कर रहा हूं, वही एस की टर्म्स में बात करूं, तो फिर हाँ जी, यहां पर आप डीसी स्टेट में जाएंगे तभी इस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स जीरोस आएंगे, सॉरी, ठीक है। और पोल्स यहां पर चले जाए, ठीक है जनाब, आर प्लस जे ओमेगा एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी की कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जहां पर जो है वो पोल्स आएंगे? सो ओमेगा इज इक्वल टू एल ओवर, ठीक है जी। अब ये वो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर यहाँ पर मेरे पास नंबर्स होते जिस तरह वहां पर मैंने नंबर्स पुट किए हैं, 2 बाई क्या था, 2/40, 2/80, ओके। तो ये वो फ्रीक्वेंसी थी जहां पर इस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स आते, ओके। तो आप इस पैटर्न पर जो है ना अपने किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस और पोल्स निकाल सकते हैं। आई बिलीव कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, ठीक है, लेकिन आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और वो सब कुछ जो पढ़ा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन, वो जो आप पेयर्स बनाते थे, एक फंक्शन था उसको कॉमन चीज़ लेकर उसका पेयर बना दिया था, याद है ना, कि वो दोनों में था, तो x+2 और x+3, मुश्किल कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 15 मिनट आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ सिखा देगा। ओके, मेरे ऑफिस से आ जाना, ओके, किसी को समझ ना लगे तो, लेकिन कल से पहले, कल पहली क्लास में ही क्विज है। ओके जी, सो आज के दिन जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की कि अगर आपका एसी सर्किट जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आप देखें, ठीक है, अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पावर या उसके सोल्यूशन से हटकर, वोल्टेज या करंट से हटकर फ्रीक्वेंसी आ गया है, तो फिर आप उसको कैसे टैकल करेंगे? तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी आज, द फर्स्ट थिंग दैट वी इनकाउंटर्ड वाज द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ट्रांसफर फंक्शन इज अ रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ एनी respective circuit, ठीक है। By sketching of transfer function means that we are interested in plotting the magnitude and phase of a transfer function, ठीक, according to or with respect to the frequency, okay. Meanwhile we discuss different the types of transfer function, voltage gain, current gain, impedance, admittance, etc., and see that how we could transform, or how could we find out the magnitude and phasor portion of our transfer function, ठीक है। Thank you very much.